على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو آبر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری ساری ضرورتیں مہیا فرمائیں. ہماری ہی نہیں بلکہ جتنی مخلوقات اللہ رب العزت والجلال نے پیدا کی ان سب کی ضرورتیں مہیا فرمائیں. الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہر چیز کو بنایا پھر اسے راستہ دکھلایا. اس ضابطے کے مطابق اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا. انسان نام ہے دو چیزوں کا، ایک جسم کا اور ایک روح کا. انسان کے روح کی کچھ ضرورتیں ہیں، انسان کے جسم کی کچھ ضرورتیں ہیں. زمین و آسمان، چاند سورج، ستارے، سیارے، درند چرند پرند، یہ سب اللہ رب العزت والجلال نے انسان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کی. روح کی صرف ایک ضرورت ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے. میرے دوستوں، ہمارے مشائخ نے دو باتیں کہی ہیں. لوہے کی لکیر ہیں، جب آزمائیں گے گرا پائیں گے. پہلی بات، جو شخص اپنے اعمال سنوار لیتا ہے اللہ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. جس بندے کو دیکھو اسی محنت اور اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس کے حالات سدھر جائیں. مثال کے طور پر میرے دوستوں، آپ بات کر رہے ہیں دوست سے، بھائی آپ مسجد نظر کیوں نہیں آتے؟ وہ کہتا ہے کاروباری حالات ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے تو میں مسجد میں آؤں گا. یعنی ہم چاہتے یہ ہیں کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں، بعد میں اعمال ٹھیک کریں. ہر بندہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ حالات سدھر جائیں. ہم کیسے ترتیب پلٹ سکتے ہیں؟ اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو اللہ رب العزت والجلال نے اس بات کو پوری طرح سے کھولا ہے سورہ یوسف میں کہ ایک بچہ ہے، اپنے ماں باپ سے دور چلا گیا، قبیلے سے دور چلا گیا. ملک سے دور چلا گیا. وہ ملک سے دور ہے، اس کی اکنومکلی لو کنڈیشن ہے، اقتصادی طور پر وہ غلام کی حیثیت رکھتا ہے. غلام کی مرضی بھی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوا کرتی، وہ تو حکم کا غلام ہوتا ہے. تو شریعت نے بتایا نہیں کہ وہ بچہ بڑا ہوا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. اس بچے نے جو اپنے ماں باپ سے سیکھا تھا، اپنے والدین سے سیکھا تھا، مضبوطی سے پکڑے رکھا، نیکی تقوی کی زندگی گزاری. پھر حالات آئے، آزمائشیں آئیں، اللہ نے ان کو ان حالات میں کامیاب کر دیا. کامیاب ہونے کے بعد کیا ہوا؟ زلیخا کا جو خامند تھا
उसके दिल में एक बात बैठ गई, ये शख्स अमानतदार है जो मेरी इज्जत की हिफाजत के बारे में इतना मामला कर सकता है कि मेरी बीवी बंद कमरों में इसे गुनाह की तरफ बुला रही है और ये बंदा कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। फिर बादशाह को यकीन हो गया कि ये अमानतदार शख्स है। फिर उसने कह दिया कि कसूर उन औरतों का था। फिर उसके बाद जुलेखा ने उसे धमकी दी कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूँ। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल चले गए। जेल जाने के बाद क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने वहाँ तरतीब बनाई कि दो बंदों ने ख्वाब में देखा। उनमें से एक बादशाह के पास चला गया और एक को सूली दी गई। कुछ अरसे के बाद बादशाह ने ख्वाब में देखा, ताबीर देने वाला कोई नहीं था। ये शख्स जेल से छूट कर आया था। तो इसने कहा, हाँ मैं एक शख्स को जानता हूँ, उसने मुझे ख्वाब की ताबीर दी थी, बिल्कुल सच निकली। कहा बुलाओ। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाने गए तो कहा पहले ये फैसला करो कि कसूर उन औरतों का था या मेरा था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र के क्या कहने। कितनी सालों की जेल खाने के बाद पैगाम आता है कि जेल से बाहर आ जाइए, तो कहते हैं पहले ये फैसला करो कसूर मेरा था या उन औरतों का था। चुनांचे जेल से बाहर आ गए तो बादशाह ने कहा मैं बहुत कॉन्फ्यूजेड हूँ, यानी परेशान हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 साल बड़े अच्छे आएंगे, गल्ला महफूज कर लेना। फिर 7 साल बड़े कहत के आएंगे, उसमें आपको मैनेजमेंट हालात से समझदारी निपटाना पड़ेगा। इससे जो आपकी रियाया है वो मुश्किल से बच सकती है। बादशाह बोल रहा था इस काम के लिए हिम्मत चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, लीडरशिप चाहिए, हौसलामंद क़ियादत चाहिए। तो बादशाह के दिल में अमानतदारी बैठ गई कि क्यों ना हम इसे खजानों का निगरान बना दें। खुद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कह दिया आप मुझे खजानों का निगरान बना दीजिए। चुनांचे खजानों का निगरान बन गए। फिर इतने अच्छे सलीके से इंतजाम चलाया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि रियाया भी मुतमईन हो गई। अब जब सारे मुतमईन हो गए तो बादशाह ने कहा क्यों ना हम सारे मामले को इनके सुपुर्द कर दें। चुनांचे वक्त का बादशाह बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल इस वाक़ये से समझाना ये चाहते हैं कि तुम हालात सुधरने के पीछे मत भागो, अमाल संवारने के पीछे भागो, क्योंकि हालात को संवारना ये हमारे जिम्मे है। हम बेसहारा परदेसी के बच्चे के हालात को संवार कर उसे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा सकते हैं, तो हम तुम्हारे भी हालात को संवार सकते हैं। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा मा फ़अल्तुम बि यूसुफ, क्या आपने यूसुफ के साथ क्या किया? तो वो हक्का बक्का रह गए, उनको तवक्को नहीं थी। इन्नका लअंता यूसुफ, क्या आप यूसुफ हैं? क़ाल अना यूसुफ, हाँ मैं यूसुफ हूँ। वहादा अखी, ये मेरा भाई बिन्यामीन है। क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पर एहसान किया। मन यत्तकी व यस्बिर, जो मुत्तकी होता है अपने अंदर सब्र ज़ब्त पैदा करता है। तो जो शख्स अपने अमाल को संवार लेता अल्लाह उसके हालात को संवार देते हैं। दूसरी बात, जो शख्स अपनी आखिरत को संवार लेता अल्लाह ताला उसकी दुनिया को संवार देते हैं। हम फिर गलती कर जाते हैं, हम इसी मेहनत और इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारी दुनियावी जिंदगी संवर जाए। एक पजल पहेली बनी हुई है, एक हिस्सा जोड़ते हैं तो दूसरा टूटता, दूसरा जोड़ते हैं तो पहला टूटता। इसी तरह
हमारी जिंदगी की एक तरतीब बनी हुई। चुनांचे इसकी मिसाल अगर देखनी है तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मुबारक जिंदगियों को देखिए कि उन्होंने अपनी आखिरत संवारी, तो उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने उनकी दुनिया संवारी कैसे। बात क्या है कि न कैसर व किसरा से दबे चंद वो लोग ऊँटों के चराने वाले, जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए दुनिया के तकदीर बदलने वाले। इत्मीनान, इतना इत्मीनान कि यमन से जवान औरत चलती है, मक्का तैयबा पहुंचती है, पूरे रास्ते में उसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं होता। माल दौलत के इतने ढेर अता किए कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैं लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़े से सोने की ईंटों को तोड़ता था, अब लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़े से जो सोना टूटेगा वो लौ में गिरामों में नहीं मिल सकता। माल दौलत के इतने ढेर अता किए कि बच्चा पैदा होता था तो उसका वजीफा मुतय्यन था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक रात देखते हैं कि एक औरत अपने छोटे बच्चे को रोटी का टुकड़ा खिलाने की कोशिश कर रही। पूछा ऐसा क्यों कर रही हो? औरत ने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन ने कानून बनाया हुआ है कि जब बच्चा दूध छोड़ेगा तो हम अपने बैतुल माल से उसका रोजीना मुतय्यन करेंगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए, बहुत रोए। सहाबा कहते हैं उस दिन फजर की नमाज पढ़ाई, किरात के अंदर इतना गिरिया और बुका था कि हमें समझना मुश्किल था। हम कह रहे थे अमीरुल मोमिनीन को आज क्या हो गया। फिर नमाज पढ़ाने के बाद मिंबर पर बैठे, फिर बताया कि जो मैंने ये कानून बनाया था, कितने मासूम बच्चे अपने माओ के दूध से महरूम हो गए। फिर ऐलान हुआ कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं छड़वाएगी, जिस दिन से बच्चा पैदा होगा उसी दिन से उसका वजीफा मुतय्यन कर दिया जाएगा। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा, अगर ये बस्ती वाले ईमान लाते और तकवा अख्तियार करते तो हम जमीन और आसमान से उनके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देते। मेरे दोस्तों, वक्त की किल्लत की वजह से मैं अपनी बात को यही खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।